ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમે. ચંદ્ર અને ચકોરનું એ દ્રષ્ટાંત છે. બહુ વર્ષો પહેલા આ દ્રષ્ટાંત મેં આપતા હતા કે ચકોર ચંદ્રની સામે હું જોઈ રહ્યો હતું. એટલે એક સજ્જન ત્યાંથી નીકળે છે અને ચકોરને કહે છે કે શું જોવે છે? તો કે હું ચંદ્રને પ્રેમ કરું છું. તો કહ્યું કે પ્રેમ તો તેને કરાય જેની સાથે મિલન સંભવિત હોય. જેની સાથે મિલન શક્ય ન હોય એને પ્રેમ કરવું કોઈ અર્થ નથી, વ્યર્થ છે. હવે તું એક સામાન્ય પક્ષી, ધરતી પર રહેનાર, અને ક્યાં આકાશમાં શીતળતાનો વરસાદ વરસાવનારો ચંદ્ર, તારું એનું મિલન સંભવ જ નથી. તો ચકોરે શ્રદ્ધાપૂર્વક કહ્યું કે જરૂર મારું મિલન થશે. જ્યારે પેલા સજ્જને કહ્યું કેવી રીતે મિલન થશે? તો કહે મને. ચકોરે કહ્યું કે ચંદ્રને પ્રેમ કરતા કરતા મારું આખું પૂરું થશે, મારું જીવન વીતી જશે. બસ આખું પૂરું થયું, મિલન તો નહીં થયું ને. અને પ્રેમની પરાકાષ્ઠા ત્યારે જ આવે જ્યારે મિલન સંભવ બને. મિત્ર સાથે પ્રેમ હોય, હાથ જ્યાં સુધી ન મિલાવે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા ન આવે. માને દીકરીને પ્રેમ હોય, માને દીકરી જ્યાં સુધી ગળે માથું નાખીને મળે નહીં ત્યાં સુધી મા દીકરીનો પ્રેમ પૂર્ણ ન થાય. મિલન વગર પ્રેમ અપૂર્ણ રહે છે. બસ આખું પૂરું થયું, મિલન ન થયું ને. મારી વૃદ્ધાવસ્થા આવી જશે. બસ વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ એટલે તો કહું છું કે ચંદ્ર ક્યાં આકાશમાં શીતળતાને બારિશ કરનારો અને તું ક્યાં ચકોર, મિલન સંભવ નથી. નહીં, સાંભળ, મારું મિલન થશે. કઈ રીતે થશે? ચંદ્રને પ્રેમ કરતા કરતા, ચંદ્રની સામે દ્રષ્ટિ કરતા કરતા મારું શરીર શાંત થઈ જાય. બસ શરીર શાંત થઈ ગયું, મિલન તો સંભવ નહીં રહ્યું ને. હવે તું સાંભળ, મારું શરીર શાંત થઈ જશે, મારું મૃત્યુ થશે. મારું શરીર અહીંયા પડ્યું હશે. તમારા જેવો કોઈ સંત સજ્જન, કોઈ પરોપકારી માણસ અહીંથી નીકળશે અને મારું પડેલું શરીર તેને અગ્નિ સંસ્કાર આપશે. મારા શરીરને અગ્નિ સંસ્કાર આપે એટલે તેમાંથી ભસ્મ થશે, રાખ થશે. રાખનો ઢગલો અહીંયા પડ્યો રહેશે. અને મારા કર્મો જો સારા હશે તો સ્વયં ભગવાન શિવ અહીંથી નીકળશે અને મહાદેવજી મારા શરીરની ભસ્મને જોશે. શિવજીને ભસ્મ બહુ જ વાલી છે. અને મહાદેવજી જ્યારે ભસ્મ પોતાના હાથમાં લઈ મહાદેવ તેના ભાલમાં લગાડશે ને ત્યારે ચંદ્ર ત્યાં બિરાજે છે. ચંદ્ર સાથે મારું મિલન થઈ જશે. ઇસીલિએ પ્રીત જુઓ ચંદ્ર અંદ્રેણી ચકોરની વખાણી. પ્રીત જુઓ ચંદ્ર અંદ્રેણી ચકોરની વખાણી. હરિદાસ જળ વિના મહેનતો મરેલી. હરિદાસ જળ વિના મહેનતો મરેલી. ભૂલ બાન બોલી જેની આખડી રડેલી. ભૂલ બાન બોલી જેની આખડી રડેલી. ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી. ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી. ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી. हम सब ज्योतिर्लिंग में आए हैं, कुछ नया नियम धारण करेंगे. यहां से जहां करे ऐसे खाली नहीं जाएंगे, कोई नियम लेकर जाएंगे. आज से हम इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, इस अष्टक का पाठ करेंगे. आज से हम मौन रहेंगे, हम शांत रहेंगे, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, प्रसन्न रहेंगे. और एक नियम लीजिए, हम कम खाएंगे. तम्बाकू गुड़ का कभी नहीं खाएंगे. हमारे एक बहुत समय पहले, गांव का नाम तो भूल गया, बोलावा. बहुत समय पहले कथा के ना बोलावत ने बोलावत ने बोलाओ. तो वहाँ हमारे महेश भाई थे, प्रिंसिपल थे, बहुत बड़ी स्कूल थी. बहुत समय बाद के उसको मैं याद कर रहा हूँ. आज से लगभग 15 साल के 20 साल पहले कथा की होगी. बहुत समय निकल गया ना. तो वो गुड़का खाते थे. तो यहाँ आकर हाथ में पानी लेकर सोमनाथ आकर गुड़का छोड़ देते थे. फिर दूसरा
सोपारी खाने का नियम यहाँ से लेते थे, फिर सोपारी बहुत खाने लगते थे, फिर यहाँ आकर सोपारी छोड़ते रहते थे, फिर माओ शुरू हो जाता था, माओ छोड़ देते हैं। पूरा जीवन मैंने देखा, एक व्यसन यहाँ छोड़ते हैं, दूसरा व्यसन शुरू कर देते हैं, एक व्यसन छोड़ते हैं, दूसरा व्यसन शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बार प्रतिज्ञा ली, प्राण जाए पण वचन न जाए बचे, दृढ़ संकल्प करना है। यहाँ आए हैं तो जीवन परिवर्तन करके जाएंगे। मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में, विचारों में कुछ बदलाव होना चाहिए। बाकी तुम गए थे सोमनाथ, कपड़े तो रोज बदलते हैं, गांव भी बदलते रहते हैं, लेकिन स्वभाव बदले तो जीवन में कुछ नवीनीकरण होगा। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा 6 मास यहाँ कोई रहेगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भगवान का वचन है, शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत है। ये सभी रुद्र संहिता का सुंदर सुंदर श्लोक, कोटि रुद्र संहिता का श्लोक है। एकं च पूजितं येन षण्मासं तन्निरन्तरम्। 6 महीना निरंतर, 6 महीना निरंतर यहाँ रहकर सोमेश्वर महादेव की कोई पूजा करे, कोई भी ज्योतिर्लिंगों में, ये सभी ज्योतिर्लिंगों की बात है। एकम च, एक ज्योतिर्लिंगों में 6 महीना रहकर विशेष प्रकार से निरंतर पूजा करे तो तस्य दुःखं न जायते, दुःखं न जायते, कोई दुख नहीं होगा और कोई माता के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ेगा। मातृकुक्षी समुद्भवम्, मातृकुक्षी समुद्भवम्। कोई माँ के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ेगा। और जीवन का सबसे बड़ा कोई दुख है तो गर्भ का दुख है। माँ के पेट में जब जीव रहता है, कोई माँ के पेट में, पशु भी माँ है, पक्षी भी माँ है, जलचर नभचर, कोई भी माँ के पेट में जब रहना, मनुष्य होकर भी रहते रहते तो भी इतनी पीड़ा तो है ही वहाँ। तो कोई माँ के पेट में जीवात्मा को निवास करना नहीं पड़ेगा। 6 महीना यहाँ रहते हैं, लेकिन भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ रहते तो। और ये भी कहा है कि यहाँ तीर्थ में जो रहते हैं वो तीर्थ अंश है, ये तीर्थों का अंश है। इसलिए कभी अवसर मिले तो, समय मिले तो, बाकी तो समय तो मिलने वाला नहीं है, पता है मुझे, किसी को नहीं मिलता। कथा में 9 दिन रहने का समय नहीं मिलता है तो 6 महीना तो समय कहाँ से वो निकालेंगे, कभी नहीं उसको मिलेगा है। और 6 महीना, 6 मास रहकर यहाँ कोई रहता है, साधना करता है, उसकी कामना की पूर्ति रहती है। इसलिए बहुत सारे संतों को मैं जानता हूँ, मेरे परिचय में भी है, वो हर ज्योतिर्लिंग में 6-6 मास रहते हैं। ऐसे बहुत सारे संत मेरे मित्र हैं, हर ज्योतिर्लिंग में 6-6 मास रहते हैं, हम नहीं रह सकते। और यदि कोई नीच कुल का उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य है, वो सोमनाथ महादेव का दर्शन करता है, उसका दूसरा जन्म उत्तम कुल में रहता है। नीच कुल मतलब कोई ज्ञाति जाति की बात नहीं, ज्ञाति जाति ऐसा कोई भाव नहीं। नीच कुल मतलब माता पिता दुराचारी हैं, कुल पूरा भ्रष्ट हैं, ऐसे कुल में नीच कुल उनको कहा जाता है। कोई जाति ज्ञाति का यहाँ कोई वर्णन नहीं। नीच कुल जो संस्कारहीन, भक्ति विहीन, जिनका परिवार है, ऐसे कुल में जिनको जन्म मिला है। जैसे भक्त प्रहलाद, पिताजी कितने भगवान के विरोधी थे, भगवान के देशी थे, तो वे प्रहलाद प्रभु को पा गया। उनको सतकुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलेगा, हीन योनि में जिनका जन्म हुआ है। ये भगवान का वचन है। इसलिए ये दर्शन करना कोई छोटी बात नहीं है सोमेश्वर महादेव का। और आज पीके लहरी साहब और हमारे जनरल मैनेजर चावड़ा साहब यहाँ सोमनाथ मुझे सुबह सुबह में कह रहे थे कि बापू हम थोड़े समय से देख रहे हैं, आ गए बैठे हैं चावड़ा साहब, मुझे पता नहीं, जो कि टीवी मेरे बीच में आता है, मुझे दिखाई नहीं देता है। अभी आया मैं नाम લીધું ને એમ સારું કેટલું કહેવાય, ભાગશાળી કેટલા કહેવાય જેનું નામ લીધું હમ આવ્યા, તો થોડાક આ બાજુ આમાં આવતા રહ્યું ને તો મને થોડુંક દેખાય સાહેબ, આ મને ટીવી આડું પડે. હા બરોબર. ચાવડા સાહેબને ખૂબ તાલી વડે આપણે વધાવીએ છીએ. આવો પધારો પધારો, વેલકમ પધારો. આ ટીવી છે ને આડું આવતું સાહેબ, તમારું નામ લીધું ને તમે આવ્યા, મને ખબર નહીં ત્યાં કે દેખાતું નહોતું ત્યાં કંઈ. આ ટીવી છે ને આડું આવતું સાહેબ, તમારું નામ લીધું ને તમે આવ્યા, મને ખબર નહીં ત્યાં કે દેખાતું નહોતું ત્યાં કંઈ. હે પીઆઈ રાવલ સાહેબ આપનું પણ સ્વાગત છે. ખૂબ હૃદયથી તાલીઓ વડે અમારા પીઆઈ રાવલ સાહેબનું પણ સ્વાગત કરી. એની બધી જ સિક્યુરિટીની જવાબદારી
ત્યાંની રક્ષાની સુરક્ષાની જવાબદારી અમારે રાહુલ સાહેબ ઉપર છે. બહુ હૃદયથી આપનું પણ સ્વાગત છે. અન્ય પધારેલા મહેમાનોનું પણ સ્વાગત. જીતુપુરી બાપુ આપનું પણ હૃદયથી સ્વાગત છે. જીતુપુરી મારી સાથે ઇંગ્લેન્ડ આવ્યા હતા ચાવડા સાહેબ. મને કે હવે આવે એ બાપમાં ફેરવો ઇંગ્લેન્ડમાં. થાકી ગયા હતા. મેં કીધું તમે તો શું કરીએ, દર વર્ષે આવીએ છીએ. કેટલા દેશોનું મેં ભ્રમણ કરી કે હવે પગ ન મૂકો કોઈ દી ઇંગ્લેન્ડમાં. કે એમ કેવો સારો અનુભવ થયો છે ઇંગ્લેન્ડને એમને. બોલો વિચાર કરો. મેં કહે એમનો કંઈ ફરી વાર આવું છે પણ નહીં. હું તમને બહુ દિલથી કહું છું, ભારત દેશમાં જે આનંદ અને મજા છે ને એવી કોઈ દેશમાં મજા નથી. એમાં ભારત દેશની અંદર ગુજરાતમાં જે લહેર છે એવી લહેર ક્યાંય નથી. અને ગુજરાતમાં જે લહેર છે એના કરતાં વધારે સોમનાથમાં જે છે એવું ક્યાંય નથી. સોમનાથ મહાદેવમાં જે લહેર છે એટલે આપણે તો બહુ ભાગશાળી છીએ કે આપણા પૂર્વજનોના કોઈ પુણ્ય એકત્ર થયા છે, તેથી આપણે અહીંયા છીએ. અને આપણે સૌ સોમનાથ મહાદેવનું આરાધન કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. 9 દિવસ માટે આપણે સોમનાથ મહાદેવનું આરાધન કરશું. 6 મહિના તો ન રહી શકીએ પણ કમસે કમ 9 દિવસ તો રહીએ. નામે શિવ મહાપણ ગ્રંથમાં એવું કહ્યું પણ છે કે જીવનનું બધું જ કાર્ય પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારબાદ નિવૃત્તિનો સમય માણસે જ્યોતિર્લિંગોમાં વિતાવવો જોઈએ. હજી પણ ઘણા બધા શેઠ લોકોને હું ઓળખું છું, જે મારવાડી સમાજના શેઠ લોકો છે એ બધા જ પોતાનો પરિવારમાંથી નિવૃત્તિ લઈને બધાને હાથ જોડી અને નીકળી જાય અને કાશીમાં, વૃંદાવનમાં, જ્યોતિર્લિંગોમાં, ઋષિકેશમાં એ લોકો નિવાસ કરે છે. એવા અનેક મોટા શેઠોને હું ઓળખું છું જે મારા સંપર્કમાં છે. આપણે તો કોઈ પૂરું થતું જ નથી, નીકળવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. ક્યાંય ખરા ઘરમાં બહુ મને હેરાન ન કરતા હોય ને કર જુનાગઢ વયો જાય પણ શિવરાત્રિના મેળામાં મેળો પૂરો થાય એટલે પાછો આવે છે. इसीलिए शिव महापण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, हीन योनि में किसी का जन्म हुआ है, सोमनाथ महादेव का पूजन करे, सोमनाथ महादेव का दर्शन करे तो उत्तम कुल में उसको जन्म मिलेगा और उसका सर्व प्रकार से कल्याण और मंगल होगा और श्रेष्ठ कुल में उसको जन्म मिलेगा. कितनी सुंदर बात है. हीन योनियो यदा जातो, हीन योनो यदा जातो ज्योतिर्लिंगं च पश्यति. पश्यति मतलब देखना. जो कोई ज्योतिर्लिंग को देखता है, पश्यन्ति मतलब जो अथवा दर्शन करना. कोई हीन योनि में जन्म हुआ कोई जीव जो सोमनाथ महादेव को देखता है, सोमनाथ महादेव का दर्शन करता है, तो उनके लिए भगवान ने वचन दिया है, तस्य जन्म भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः, विमले सत्कुले पुनः. पुनः जन्म, दूसरा जन्म उसका सतकुल में, श्रेष्ठ कुल में, भगवान महादेव के भक्त कुल में उसका जन्म होगा. सतकुले जन्म संप्राप्यम, श्रेष्ठ कुल में जन्म होने के बाद वेदों का ज्ञाता होगा, धन धान्य से संपन्न होगा, शुभ कर्म करता हुआ दिखाई देता और अंत में मुक्ति को प्राप्त होगा. जो सोमनाथ महादेव के दर्शन करने मात्र से, इसीलिए तो कितने लोग दर्शन करते. मैं बात ये कह रहा था कि सुबह में राष्ट्रध्वज वंदन के समय प्रजासत्ताक दिन सुबह में एक मिले थे तो मंच पर चावड़ा साहब ने मुझे कहा कि हम थोड़े समय से देखते हैं बापू कि युवा भाई बहन बहुत ज़्यादा सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए पधार रहे हैं. ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी. इस बात पर मैंने आपको याद किया था. अभी मैं ये बात कर रहा था तब आपका आगमन हुआ. ये मैं कह रहा था कि आजकल युवान भाई बहन, और मैं बहुत समय पहले त्रयोदशी के दिन यहाँ था तो त्रयोदशी की यहाँ रात्रि की पूजा होती है भगवान की. रात्रि में दर्शन की जाती है, आरती होती है रात्रि में. त्रयोदशी शिवरात्रि के दिन त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे तो जन्म जन्म के पाप नचावे. तो त्रयोदशी के दिन मैं रात्रि में था तो मुझे एक जगह पर खड़े रखने के लिए जगह रखी थी वहाँ दर्शन के लिए, और बहुत सारे दर्शनार्थी आते थे. तो इसमें रात्रि में मैंने देखा ज़्यादातर युवान भाई थे.
अरे एक बार नहीं 10-10 बार, एक बार दर्शन कर लिया फिर आते ऐसे घूमते रहते, क्योंकि लाइन खड़ी नहीं रहती है, लाइन चलती रहती है। एक बार दर्शन करे उसको संतुष्टि नहीं होती, इसे बार बार दर्शन करने के लिए आते थे। और सोमनाथ महादेव को दर्शन करके मेरे सामने देखते थे, थोड़ा सा मुस्कुराहट करके चले जाते थे। और मैं कहता था मैं आप बार बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे कहते बापू एक बार दर्शन करने से कभी संतुष्टि नहीं होती, जितना दर्शन करे इतना कम रहता है, जितना दर्शन करे इतना कम रहता है। और आजकल हमारे कथा में भी आजकल युवान भाई बहन बहुत आते हैं। मैं जब अभी छत्तीसगढ़ सिहावा में कथा कर रहा था, सिहावा का सही नाम है शिव आवा, वहाँ महानदी का उद्गम स्थान है। तो महानदी के उद्गम स्थान पर सप्त ऋषि थे, तो सप्त ऋषि बोलने लगे शिव आवा शिव आवा शिव आवा, इसलिए इस विस्तार का नाम हो गया शिव आवा। और बाद में समय बीतने के बाद इस नाम को भ्रष्ट कर दिया, सिहावा हो गया। जहाँ सप्त ऋषियों का आश्रम थे, झाड़ पहाड़ वनराय, 1001 ऑक्सीजन थे, वहाँ के लोग इतने भोले भाले लोग थे। वहाँ के भाइयों बहनों को मैंने देखा, अंग पर एक भी चांदी का सोने का आभूषण नहीं, ऐसी व्यवस्था वहाँ है। और वहाँ के रोड नहीं, सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं छत्तीसगढ़ में। और वहाँ के उपमंत्री भी वहाँ आए, वहाँ के बहुत सारे मंत्री श्री भी कथा में आए। सबको मैंने कहा कि सरकार तो केंद्र में एक है, ये जो आप कथा अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं ना, वो वहाँ सिहावा की कथा छत्तीसगढ़ थी। अभी मैं वहाँ से कथा पूर्ण करके आया। हमारे मुकेश बाबा जी इस कथा के अध्यक्ष और आयोजक थे। तो मैंने सभी मंत्रियों उपमंत्रियों को मैंने कान में कहा कि यहाँ क्यों खो नहीं रहा, सरकार को केंद्र में भाजपा ही, आपकी सरकार भी भाजपा की सरकार है, तो यहाँ क्यों कमी, क्या जवाब दें, कुछ ही नहीं बन रहा था। और गुजरात में देखो रोड रास्ता सुरक्षा, और मेरा निवास स्थान था वहाँ 5 भरी बंदूक में मिलिट्री जन रहते थे, मिलिट्री फौज वहाँ रहती थी मेरा निवास स्थान पर, और पूरी रात जागती थी, पूरी रात जागती थी। और कथा था चारों तरफ मिलिट्री के जवान, चारों तरफ पुलिस के जवान। और मैंने अंतिम दिन सबको मंच पर आमंत्रित किया और सभी मिलिट्री जवानों का आदर किया, पुलिस जवानों को आदर किया, मैंने बहुत बड़ा सम्मान किया सबका। और 2-3 मिलिट्री वाले तो थे, बापू पहली बार मंच पर आकर हम शिव महापुरुष भगवान की आरती, जो देखो आप टेलीविजन में देखो, पहली बार आरती उतार रहे हैं हम। और एक तो फौजी तो रो पड़ा, बापू धन्य हो गई, 9 दिन कथा सुनने का अवसर मिला और अंतिम दिन आपने आरती के लिए मंच पर बुला लिया। मैंने सभी जवानों को, आप जो टेलीविजन में देख रहे हैं, मैं कभी अवसर को चूकता नहीं हूँ। और सबको मैंने प्रणाम किया था और आभार व्यक्त किया था। आप सब ने हमारी बहुत रक्षा की, आप सब ने हमारा बहुत ध्यान रखा। बहुत हृदय में आप सबको प्रणाम करता हूँ। किसी के ऋण में नहीं रहना चाहिए, और छोटा सा काम कोई करे तो तुरंत उसको आभार व्यक्त करे। रास्ते में जाते हैं, किसी को अपना रास्ता पूछा कि रास्ता कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि रास्ता सोमनाथ जा रहा है, उसको भी आभार करके जाना चाहिए। આપણે તો ગુજરાતી કાઠિયાવાડી, એ ભાઈ આ રસ્તો ક્યાં જાય છે, તો કે સોમનાથ બાજુ આ, ઠીક હારું લ્યો। આપણે બધા ગુજરાતી હારું લ્યો, કંઈ આભાર નહીં, આડે ધડ ખભા ખબ કોઈ જાતનું કાંઈ નહીં। અમારા વિદેશથી જે આવ્યા છે ને, એની સાથે ખાલી થોડીક તમે સારી વાત કરો ને તો પણ એ લોકો થેન્ક યુ કહેવાનું નહીં ભૂલે। થેન્ક યુ સોરી, થેન્ક યુ સોરી, થેન્ક યુ સોરી, આભાર વ્યક્ત કરવાનું એ લોકો નહીં ભૂલે, એનામાં વિશેષતા છે। એટલે જીવનમાં પણ આવું આપણે અપનાવીએ કે દરેકનો આભાર માનીએ। કોઈ આપણી સાથે મીઠી વાત કરી હોય તો પણ કહીએ કે ભાઈ આભાર। કોઈ આપણને ફોન કર્યો હોય, આપણે ખબર અંતર પૂછવા માટે, તો પણ કહીએ કે ભાઈ બહુ ખૂબ ખૂબ આભાર, આપે મારી ખબર लेवा માટે મને फ़ोन કર્યો है। तो जो कोई सोमनाथ महादेव का दर्शन करेंगे उनके लिए कहा सतकुल में उसका जन्म होगा और धन धान्य वेद पारांग होगा। मनुष्य जन्म मिला इतना नहीं, श्रेष्ठ कुल में जन्म मिलेगा, सतकुल में जन्म मिलेगा, धनाढ़ होगा, वेद पारंगत होगा, शुभ कर्म करता हुआ दिखाई देगा और अंत में मुक्ति को प्राप्त होगा। भगवान का वचन है। सतकुले जन्म संप्राप्य धनाढ़यो वेद पारंगत। सबको ये नहीं मिलता, ज्ञान विद्वत्ता बहुत जन्मों के पुण्य से मिलता है। अनंत जन्म भी घोरम, जिनमें अघोर तपस्या की है पूर्व जन्म में, उसको महादेव की भक्ति मिलती है। बीच में दूसरा मैं लेता हूँ, मिश्रित करता हूँ थोड़ा सा। ये भगवान का वचन है, व्यास भगवान का वचन है। सबके हृदय में महादेव के प्रति इतना भाव नहीं उठता। बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप महादेव की भक्ति मिलती है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का मनुष्य जो महादेव की भक्ति करता है वो मनुष्य कोटि में नहीं है, ये मनुष्य देव कोटि में है।
उसको देव पुरुष कहा जाता है। देव पुरुष जो महादेव की उपासना करते हैं उसको देव पुरुष कहते हैं। और महादेव के भक्तों को कभी सामान्य नहीं मानना, वो दर्शनीय है, वो तीर्थ प्रतीक है, तीर्थ स्वरूप है। महादेव ने तो स्वयं ने कह दिया कि हे देवताओं, कभी मेरा दर्शन न हो सके, कहीं मैं तो कंदराओं में, कहीं मैं तो गुफाओं में, कहीं मैं घनघोर जंगल में, मैं तपस्थ में ध्यानस्थ रहता हूँ। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिंद बचार चंद्रा वसंतम। पता नहीं मैं कहाँ कब चला जाता हूँ। ध्याये नित्यं महेशं, ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा पीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयानं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं ध्याये इसलिए महादेव ने कह दिया कि देवताओं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कभी ध्यानस्थ हो जाता हूँ, मैं कभी गुफाओं में चला जाता हूँ, मैं घनघोर जंगल में, हिमालय पहाड़ों की कंदरा में मैं चला जाता हूँ। इसलिए कभी मेरे दर्शन न हो सके देवताओं, तो मेरे दर्शन की अभिलाषा है ना, तो मेरे भक्तों का दर्शन कर लीजिए, मेरे दर्शन का फल आपको मिल जाएगा। ये महादेव के भक्तों के महिमा है। और सबके हृदय में दृढ़ भक्ति महादेव की नहीं होती, अविचल भक्ति कभी नहीं होती, सबको कभी नहीं मिलता। जिन्हें अघोर तपस्या की है, अनंत भाव तक जिन्होंने तप किया है, ये भगवान का वचन है। मैं तो मध्यस्थ, मैं तो मिश्रण करता हूँ सब कुछ।